ਹੈਲੋ ਸਟੂਡੈਂਟਸ, ਟੀਵੀ ਸਕੂਲ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੇ ਮੈਥਸ ਦੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਾਂ 10th ਕਲਾਸ ਦਾ ਮੈਥਸ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 5। ਚੈਪਟਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ਼ਨ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ nth ਟਰਮ ਕਿਵੇਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਪੀ ਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਗਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ nth ਟਰਮ ਜਿਵੇਂ ਕਿ 5th ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਸ ਏਪੀ 'ਚ 6th ਟਰਮ ਕੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ an ਦਾ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਸੀ an is equals to a plus n minus 1 d, ਜਿੱਥੇ ਕਿ a ਸਾਡੀ ਫਰਸਟ ਟਰਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, n ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਟਰਮਸ, ਕਿ ਉਸ ਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ, 10 ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ 5 ਟਰਮਸ ਨੇ ਜਾਂ 50 ਟਰਮਸ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਟਰਮਸ ਨੇ ਉਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ। a ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਤੇ d ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਆਵੇ। ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੋਲਵ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2। ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ 5.2 ਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 6 ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਕੁਝ ਕੁਐਸਚਨਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਲੈਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲਵ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਰਹਿ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਸੋਲਵ ਕਰਨੇ ਆ। ਸੋ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ -150 ਇਜ਼ ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਦਿਸ ਏਪੀ। ਇੱਕ ਏਪੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਏਪੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ, ਪਹਿਲੀ ਟਰਮ ਹੈ 11, ਫਿਰ 8, ਫਿਰ 5, ਫਿਰ 2, ਫਿਰ ਸੋ ਔਨ। ਸੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਏਪੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ -150 ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਏਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਇਹ ਨੰਬਰ ਜੋ ਹੈ -150 ਉਹ ਇਸ ਏਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੈੱਕ ਵੈਦਰ -150 ਇਜ਼ ਅ ਟਰਮ ਆਫ ਦਿਸ ਏਪੀ। ਸੋ ਅਗਰ -150 ਇਸ ਏਪੀ ਦੀ ਕੋਈ ਟਰਮ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਆਊਗੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ 11 ਆ ਜਿਹੜੀ, ਉਹ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ, ਫਸਟ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਹੈ। 8 ਨੰਬਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ, 5 ਥਰਡ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ, 2 ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਥ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ -150 ਵੀ ਇਸ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੋਊਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ -150 ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਅਗਰ ਇਸ ਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਹੈ ਤਾਂ, ਅਗਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਇਸ ਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਏਪੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ nth ਫਾਰਮ an, ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ nth ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ a n ਤੇ d ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। a ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਫਸਟ ਟਰਮ ਆਫ ਦੀ ਏਪੀ। ਸੋ ਏਪੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਗਿਵਨ, ਉਹਦੀ ਫਸਟ ਟਰਮ ਕਿੰਨੀ ਹੈ 11। ਸੋ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 11। d ਆਪਾਂ ਕਿੱਦਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਚੋਂ ਫਸਟ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਕਰਕੇ। So 8 minus 11 is equals to -3, because ਵੱਡੀ ਵੈਲਿਊ ਦੇ ਅੱਗੇ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ ਹੈ, ਸੋ -3 ਆ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕੋਲ an ਕਿੰਨਾ ਹੈ, an ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ -150। -150 an ਕਿੱਦਾਂ ਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜੋ -150 ਹੈ ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇਸ ਏਪੀ ਦੀ ਟਰਮ ਹੋਏਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, nth ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ। nth ਟਰਮ ਮਤਲਬ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, nth ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਹੋਊਗੀ ਤੇ ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿ ਇਹ 5th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ 10th ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਈ ਹੈ, ਉਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਇਹ ਨੰਬਰ ਪਿਆ ਹੈ ਅਗਰ ਇਹ ਇਸ ਏਪੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, an ਦੀ ਵੈਲਿਊ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਵਨ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼। an is equals to a plus n minus 1 d। an -150 ਹੈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 11 ਪਲੱਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ -3। ਸੋ -150, 11 ਇਸ ਸਾਈਡ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਦਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਧਰ ਲਿਆਵਾਂਗੇ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 11 ਬਣ ਜਾਏਗਾ। ਇਸ ਤਰਫ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਿਆ n-1 ਤੇ -3। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਪਰ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਦਾ ਸਾਈਨ, 0 + 1 0, 161। ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। -3 ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ -3n। -3 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਂਸਰ ਆ ਗਿਆ +3। ਸੋ ਇਸ ਤਰਫ ਹੈ 161, +3 ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਬਣ ਜਾਏਗਾ -3। ਐਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਮਾਈਨਸ ਦਾ 164, ਮਾਈਨਸ ਮਾਈਨਸ ਪਲੱਸ, ਪਰ ਸਾਈਨ ਮਾਈਨਸ ਦਾ, ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ
164 माइनस द इज इक्वल्स टू माइनस द 3n। माइनस के साइन ने एक दूसरे ਨੂੰ कैंसिल करता। 164 इज इक्वल्स टू 3n। अगर 3 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर नीचे चले जाएगा डिनोमिनेटर ਦੇ ਵਿੱਚ। 164 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਆਪਾਂ डिवाइड ਕਰਦੇ ਹਾਂ 14। आंसर कितना आया 2 ਸਾਡੇ ਕੋਲ रिमाइंडर बच गया। ਇਹਦਾ मतलब 164 ਆ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ डिवाइड नहीं हो रहा 3 ਨਾਲ। सो अगर आप ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ सॉल्व करांगे तो ਇੱਥੇ डेसिमल लगावांगे 0.0 फिर एक 0। सो अगे कंटिन्यू चलता जाएगा। सो आंसर साडा आ रहा है 54.66। ठीक है 54.66 ते अगे भी आंसर आई जाएगा। सो n की वैल्यू जो है वो एक इंटीग्रल वैल्यू नहीं आई, मतलब कोई इंटीजर नहीं आया जिवें 5th पोजीशन 6th पोजीशन 7th पोजीशन इस तरह का नंबर नहीं आया। साडे कोल आंसर कितना आ गया 54.66। सो n is या वैल्यू ऑफ n is not an integer। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਲਈ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ। ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ 1 ਹੁੰਦਾ, ਫਿਰ 1 2 3 4 5। ਕਿਸੇ ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਡੈਸੀਮਲ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ 5.5 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ, 5.6 ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏ। ਰੋਲ ਨੰਬਰਸ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਕਹਿ ਲਓ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਦਿੰਨੇ ਆ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਾਂ ਇੰਟੀਜਰ 'ਚ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਇੰਟੀਗਰਲ ਵੈਲਿਊ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਨਾ ਕਿ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਅਗਰ ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਲਈ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਵੈਲਿਊ ਆਫ n ਇਜ਼ ਨਾਟ ਐਨ ਇੰਟੀਜਰ, therefore this value is not possible। ਇਹ ਵੈਲਿਊ ਪੋਸੀਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 150 ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜੋ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ ਕਿ ਚੈੱਕ ਕਰੋ ਕਿ 150 ਇਸ AP ਦੀ ਟਰਮ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ 150 ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੇ ਪਿਆ ਵਾ। ਜਾਂ ਮੈਂ ਕਹਿ ਸਕਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨੰਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਸ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦਾ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗੀ ਕਿ ਇਹ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇਸ ਕਲਾਸ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦਾ। ਅਗਰ ਇਹ ਮੇਰੀ ਕਲਾਸ ਹੈ तो क्वेश्चन की बन गया कि 150 चेक करो कि इस क्लास च बैठता है या नहीं बैठता। 150 इस क्लास च तां बैठूगा अगर उसका रोल नंबर इस क्लास च आंदा होगा। जो मैं सारा सम सॉल्व किया तो मैं देखा कि अगर रोल नंबर 54.6 बनता है, जो कि रोल नंबर इदां दा हुंदा ही नहीं, रोल नंबर हुंदा या 5 6 7 इंटीजर वैल्यू हुंदी है। सो ਇਹਦਾ मतलब जो 150 है वो इस क्लास ਦੇ ਵਿੱਚ नहीं बैठता। ਇਹਦਾ मतलब जो उन्हें क्वेश्चन किया कि चेक करो 150 जो है इस AP ਦੀ टर्म है या नहीं। आपका आंसर क्या होगा नो minus 150 is not a term of this AP। कि minus 150 जो है वो इस AP ਦੀ टर्म नहीं है। सो इस तरह का क्वेश्चन सी एक डिफरेंट क्वेश्चन है, बुक का क्वेश्चन है एक्सरसाइज का। करना की सीगा A D ते AN ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ ਨੂੰ गिवन है, N ਦੀ वैल्यू ਆਪਾਂ फाइंड करनी सी। ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ N ਦੀ ਵੈल्यू ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੰਟੀਜਰ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ, ਡੈਸੀਮਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨਸਰ ਆ ਰਿਹਾ है, जो कि पॉसिबल नहीं है क्योंकि n की वैल्यू हमेशा एक इंटीग्रल वैल्यू आती है, इंटीजर आता है। सो दिस वैल्यू इज़ नॉट पॉसिबल। अगर ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है ਇਹਦਾ मतलब an माइनस 150 जो नंबर है वो इस AP ਨੂੰ बिलोंग नहीं करता। सो ये सीगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। सो इस तो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं हम आप। हाँ जी बच्चों, हम आप करन लगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 11। सो क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट देखते हैं। पहला क्वेश्चन की है, क्वेश्चन ये है कि विच टर्म ऑफ द AP 3 15 27 39 ये अपनी AP है, इस पूरी AP की केड़ी टर्म है जिहड़ी विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। इहो जी केड़ी टर्म होएगी इस AP की जिहड़ी कि 132 ज़्यादा होगी ओदी 54th टर्म तो। मतलब की क्वेश्चन की कह रहे हो, कहंदा केड़ी टर्म होगी AP की ਜਿਹੜੀ 132 ज़्यादा होगी, क्योंकि 132 ज़्यादा है तो प्लस करांगे ओदी 54th टर्म तो। ये अपने को स्टेटमेंट बन गई अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की कह रहे हैं। ठीक है कि इहो जी केड़ी टर्म होगी, विच टर्म nth टर्म आप फाइंड करनी है जिहड़ी कि 132 मोर होएगी 54th टर्म तो। सो ये अपनी कंडीशन है जिहदी हेल्प नाल आप an की वैल्यू फाइंड करनी है। AP आपां नूं गिवन है, फॉर्मूला हुंदा अपने कोल an इज इक्वल्स टू A प्लस n माइनस 1 D। ठीक है तो AP आपां नूं गिवन है A D ते n की वैल्यू अपन चाहिए। अगर आप an की वैल्यू फाइंड करनी है प्लस उन्हें अपन एक कंडीशन दी हुई है। सो पहला आप AP की हेल्प नाल A ते D की वैल्यू फाइंड करते हैं। AP है 3 15 27 ते 34। फर्स्ट A कितना है, फर्स्ट टर्म होंगी है A, सो हो गया 3। D मीन्स
सैकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म 15 माइनस 3 तो डी की वैल्यू आ गई 12। हुण उन्हें क्या विच टर्म ऑफ दिस ए पी विल बी 132 मोर दैन इट्स 54th टर्म। सब तो पहले आप 54th टर्म फाइंड करने की कोशिश करते हैं कि ए 54 की होगा। ए 54 कढ़ने लई इस फॉर्मूले दे विच सानू एन की जगह 54 पुट करना पऊगा। एन की जगह आप 54 पुट कर देंगे, इत्थे ए की वैल्यू पुट करांगे, इत्थे 54 माइनस 1 इत्थे आप डी की वैल्यू पुट करांगे। सो ए 54 ए कितना है 3 प्लस 54 माइनस 1 डी कितना 12। सो सॉल्व कर लेने हैं 54 माइनस 1 53 इंटू 12। 53 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। 2 3s are 6 5 2s are 10 3 1s are 3 ਸੋ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 636। 636 प्लस 3 कितना बन गया 639। सो 54th टर्म इस AP ਦੀ कितनी आ गई 639। ਹੁਣ ਇਸ ਵੈਲਿਊ ਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਸੀ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੈ AP ਦੀ ਜਿਹੜੀ 132 ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ 54th ਟਰਮ ਤੋਂ। ਸੋ ਆਪਾਂ 54 ਟਰਮ ਕੱਢ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। an is equals to 132 plus 639। सो an की वैल्यू साडे कोल आ जाएगी। an की वैल्यू कितनी आएगी 9 10 11 771। इहनू तुसी ऐड कर दो 132 प्लस 639 नू वो कितना आ जाएगा 771। सो अपने कोल an की वैल्यू है, a की वैल्यू भी गिवन है, d की वैल्यू भी गिवन है। an a ते n की वैल्यू अपन पता है, n की वैल्यू आप फाइंड करनी है। an a ते d की वैल्यू पता है, n की वैल्यू आप फाइंड आउट करनी है। सो उस फॉर्मूले ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ। an ਦੀ ਵੈल्यू 771 is equals to a ਦੀ ਵੈल्यू 3 plus n minus 1 ਤੇ d ਦੀ ਵੈल्यू 12। 771 minus 3 plus ਦਾ 3 ਇੱਧਰ ਪਿਆ, ਜਦੋਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਆਏਗਾ ਮਾਈਨਸ ਦਾ 3 ਬਣ ਜਾਏਗਾ n minus 1 12। 771 minus 3 सॉल्व करके कितना आ जाएगा 771 माइनस 3 ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਲਵ ਕਰ ਲਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਬਣ ਜਾਏਗਾ 771 3 ਮਾਈਨਸ ਕਰ ਦੋ 768। 12 ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 12 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ, 12n minus 12। ਸੋ 768 minus 12 plus 12 is equals to 12n। ਸੋ 768 plus 12 ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ 8 9 10 6 plus 1 7 ਤੇ 7। सो 770 आंसर बन गए। चेक कर लेने एक बार 768 प्लस 12 8 9 10 6 7 8 780 780 ठीक है। 780 इज इक्वल्स टू 12n आ गया। 12 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, सो जो इधर जाएगा नीचे डिवाइड बन जाएगा। 780 डिवाइडेड बाय 12 इज इक्वल्स टू n। 780 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ डिवाइड करना, आंसर अपना आ जाएगा 65 इज इक्वल्स टू। सो n ਦੀ वैल्यू कितनी आ गई 65। सो इस क्वेश्चन ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ which term of this AP will be 132 more than the 54th term। ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਕਿਹੜੀ ਟਰਮ ਹੋਊਗੀ ਜਿਹੜੀ 132 ਮੋਰ ਹੋਗੀ ਉਹਦੀ 54th ਟਰਮ ਤੋਂ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ AP ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ, D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰ ਲਈ। D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੱਢੀ ਹੈ, ਸੈਕਿੰਡ ਟਰਮ ਮਾਈਨਸ ਫਸਟ ਟਰਮ 15 ਮਾਈਨਸ 3 ਕਰਕੇ 12 ਆ ਗਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ A 54 ਟਰਮ ਫਾਈਂਡ ਕੀਤੀ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਲਈ A 54 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਸੋ A 54 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਲਾਈ ਕੀਤਾ। A 54 इज इक्वल्स टू A ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ ਪਲਸ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ 54 ਹੈ 54 ਮਾਈਨਸ 1 ਤੇ D ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ। 53 ਨੂੰ 12 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਆਇਆ 636। ਐਡ ਕੀਤਾ, ਆਨਸਰ ਬਣ ਗਿਆ 639। ਸੋ A 54 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ, ਉਹਨੂੰ ਇਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ। an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੀ ਬਣ ਜਾਏਗੀ 132 ਪਲਸ 1 639। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ 771। ਸੋ an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਗਈ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਵਿਚ ਟਰਮ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਟਰਮ ਦੀ।
ਸੋ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਇਸ ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ 771 is equals to 3 plus n minus 1 n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਤੀ 12 771 3 ਇੱਧਰ ਜਿਹੜਾ ਪਲੱਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਸੀ ਇਸ ਤਰਫ ਆ ਕੇ ਮਾਈਨਸ ਹੋ ਗਿਆ is equals to n minus 1 ਤੇ 12 ਮਾਈਨਸ ਕੀਤਾ 768 ਆ ਗਿਆ is equals to 12 ਨੂੰ ਬ੍ਰੈਕਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ ਤਾਂ 12 ਨੂੰ n ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ 12n 12 ਨੂੰ -1 ਨਾਲ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕੀਤਾ -12 ਸੋ 768 ਇਸ ਤਰਫ -12 ਸੀ ਉਹ ਇੱਧਰ ਆ ਕੇ ਪਲੱਸ ਦਾ 12 ਬਣ ਗਿਆ 768 plus 12 ਇਹਨੂੰ ਐਡ ਕੀਤਾ ਆਨਸਰ ਆ ਗਿਆ 780 is equals to 12n ਸੋ ਅਗਰ ਇੱਧਰ 12 ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਇੱਧਰ ਨੀਚੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਚ ਆ ਜਾਏਗਾ ਡਿਵਾਈਡ ਹੋਏਗਾ 780 divided by 12 is equals to n ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲੈਣਾ ਆਨਸਰ ਆ ਜਾਏਗਾ 65 n is equals to 65 ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ जो क्वेश्चन सीगा कि which term of this AP will be 132 more आंसर की आ गया 65th term of this AP will be 132 more than the A54 term आंसर आ गया 65th term सो ये सीगा अपना क्वेश्चन नंबर 11 हुण आपां इस तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हाँ जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन है अपनी एक्सरसाइज 5.2 का नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12 क्वेश्चन नंबर 12 जो है ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਇਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ ਕੁਐਸਚਨ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਜੇ ਇਹਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਪੀਸਿਸ ਚ ਬ੍ਰੇਕ ਕਰਕੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੁਐਸਚਨ ਕੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਚ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ 2 APs have the same common difference ਦੋ APs ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਮਤਲਬ ਦੋ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਨੰਬਰਸ ਦੀ ਲਿਸਟ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਹੈ ਸੋ ਆਪਾਂ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਫਰਸਟ AP ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ स्मॉल a नाल डिनोट करांगे ते जेडी सेकंड AP है ओनू कैपिटल A नाल डिनोट करांगे ठीक है फर्स्ट AP नु स्मॉल a नाल शो करांगे ते जेडी सेकंड AP है ओनू कैपिटल A नाल शो करांगे कहंदा कि 2 APs दो APs ने और इन्हां दा कॉमन डिफरेंस है जेड़ा ओ सेम है तो कॉमन डिफरेंस कितना लेना आपने ओ दोनों दा सेम है सो आपां ओनू D ले लेंगे स्मॉल d जो कि फर्स्ट AP का भी कॉमन डिफरेंस है और यही D जो है वो सेकंड AP का भी कॉमन डिफरेंस है सो फर्स्ट लाइन होगी 2 APs have the same common difference नेक्स्ट लाइन जो कहता है the difference between their 100th term is 100 the difference between their 100th term is 100 कि इन्हां दोनों APs दी जे तुसी 100th term करो कड्डोगे तो ਉਹਦਾ जो difference है वो 100 है सो पहला आप इस लाइन ਨੂੰ ਲਿਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ फर्स्ट AP ਦੀ 100th टर्म अगर आप कढ़िए मतलब आप A100 फाइंड करना है ठीक है A100 क्योंकि आप स्मॉल वाले स्मॉल a नाल शो करना है A100 कढ़ांगे तो जो an का फॉर्मूला है a plus n minus 1 d वाला ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ वैल्यूज पुट कर देने an A100 is equals to A1 plus n कितना 100 minus 1 डिफरेंस सेम है d A1 plus 99 D is equals to A100 so ये फर्स्ट AP ਦਾ ਆਪਾਂ A100 फाइंड आउट कर लिया दूसरी ਜਿਹੜੀ अपनी AP है कैपिटल A वाली ਉਹਦਾ ਆਪਾਂ फाइंड ਕਰਦੇ ਹਾਂ A so capital A100 is equals to capital A1 plus n minus 1 D D की वैल्यू दोनों तरफ सेम यूज कर रहे हैं क्योंकि D कॉमन है so A100 is equals to A1 plus 100 minus 1 D A100 is equals to A1 plus 99 D ये सारी को सेकंड इक्वेशन बन गई उन्होंने की क्या सी the difference between their 100th term so 100 term ਆਪਾਂ फर्स्ट AP ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ 100 term ਆਪਾਂ सेकंड AP ਦੀ ਕੱਢ ਲਈ ਦੋਨਾਂ 100th term ਦਾ जो difference है वो कितना है 100 मतलब small a100 माइनस कैपिटल A100 इज इक्वल्स टू ठीक है स्मॉल A100 की कितनी वैल्यू है वो पुट कर दो 99D माइनस जेड़ा कैपिटल है जेड़ी अपनी सेकंड AP है ओदी वैल्यू पुट कर देने A1 प्लस 99D माइनस जो आप ब्रैकेट ओपन कराएंगे साइन चेंज हो जाएंगे माइनस A1 माइनस प्लस माइनस 99D इज इक्वल्स टू 100 प्लस 99D माइनस 99D नु कैंसिल कर गया अपने को आ गया A1 माइनस कैपिटल A1 इज इक्वल्स टू 100 सो अपने को एक कंडीशन बन गई कि फर्स्ट AP दी जो फर्स्ट टर्म है
माइनस सैकेंड AP की जो फर्स्ट टर्म है इज इक्वल्स टू 100। सो इस कंडीशन में आप मार्क करके रख लेंगे। हुण आप नैक्सट लाइन पढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की, वॉट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कि हुण अगर इन्हां AP दी जे आपां 1000 टर्म कड्ढीए तां उहदे च कितना डिफरेंस आऊगा वो आपां फाइंड करना है। सो फर्स्ट AP दी 1000 टर्म कड्ढीए, की बनेगी A1 प्लस 1000 माइनस 1 D A1000 इज इक्वल्स टू A1 प्लस दूसरी AP दी कड्ढांगे 1000 टर्म, सो ये अपने को दो कंडीशंस आ गई। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ डिफरेंस फाइंड करना है, मतलब ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ माइनस कर दिए। ਇਹ चीज़ ਆਪਾਂ फाइंड करनी है कि दोनों ਨੂੰ माइनस करके की आंसर आता है। सो ਆਪਾਂ फाइंड करना है कि दोनों दी 1000 टर्म का डिफरेंस, दोनों दी 1000 टर्म का डिफरेंस कितना है, ਆਪਾਂ ਇਹ चीज़ फाइंड करनी है। ਜਿਹੜੀ अपनी पहली AP है ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ 1000 टर्म ਕੱਢ ਲਈ ਹੈ, ਉਹ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਹੈ A1000 इज इक्वल्स टू A1 प्लस 9990। ਜਿਹੜੀ अपनी दूसरी AP है कैपिटल वाली ਉਹਦੀ भी 1000 टर्म ਆਪਾਂ फाइंड कर लिए। ये दोनों वैल्यूज़ ਨੂੰ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ ਤਾਂ A1000 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਹੈ A1 प्लस माइनस कैपिटल A ਦੀ वैल्यू कितनी है ब्रैकेट ਦੇ ਵਿੱਚ कैपिटल A1 प्लस, ठीक है, सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट खोलते हैं, माइनस सो A1 प्लस 999D माइनस कैपिटल A1 माइनस दिस प्लस ते माइनस दी वैल्यूज़ ने एक दूजे नू कैंसल कर लिया। इस चीज़ नू सॉल्व करते पे एक दूसरे नू कैंसल कर लिया, की आ गया A1 माइनस कैपिटल A1। हुण इत्थे आपां आ वाली कंडीशन नू यूज़ करांगे। देखो A1 माइनस कैपिटल A1 दी वैल्यू आपां इत्थे कड्ढी सी, वो कितनी आई सी 100। सो A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल्स टू A1 माइनस कैपिटल A1 है, जिहदी वैल्यू असी फ्रॉम स्टार, क्योंकि असी स्टार दे विच इहदी वैल्यू कड्ढी हुई है, कितनी आएगी 100। सो इहदा मतलब कि A1000 माइनस कैपिटल A1000 इज इक्वल्स टू, सो क्वेश्चन दे विच उन्हें पूछा सी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000 टर्म, कि ये जिहड़ियां AP ने फर्स्ट AP ते सैकेंड AP, सो फर्स्ट AP ते सैकेंड AP दी 1000 टर्म दे विच कितना डिफरेंस है, मतलब कितना माइनस करके उन्होंने आंसर आया, उन्होंने दोनों ने माइनस करके आंसर किया आया 100। सो ये फाइंड आउट आपां किद्दां कीता सीगा, सब तो पहला 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। फर्स्ट AP नू नाम दिता स्मॉल A वाली, कैपिटल A वाली सैकेंड AP, डिफरेंस उन्हों दा सेम है स्मॉल d, ठीक है। सो 100th टर्म फाइंड की, 100th टर्म आपां कड्ढी, कैपिटल AP दी 100 टर्म आपां स्मॉल AP दी कड्ढी सी, कंडीशन आ गई A1 प्लस 99D, उन्होंने माइनस किया क्योंकि उन्हें क्वेश्चन दे विच गिवन सी कि द डिफरेंस ऑफ देयर 100 टर्म इज 100। सो जदों आपां फर्स्ट AP दी 100 टर्म ते सैकेंड AP दी 100 टर्म नू माइनस किया, आपां नू 100 दिता होया क्वेश्चन दे विच, वैल्यूज़ पुट करतियां, सॉल्व किया, कंडीशन मिल गई स्मॉल A1 माइनस कैपिटल 1 इज इक्वल्स टू 100। इनू आपां मार्क करके रख लिया स्टार। उस तो बाद आपां 1000 टर्म कड्ढी, क्योंकि क्वेश्चन दे विच उन्हें 1000 टर्म कड्ढण नू कहा सी, उन्हां दा डिफरेंस किया, वैल्यूज़ पुट कीतियां, तो वैल्यूज़ पुट करन तो बाद वो आ गई स्मॉल A1 माइनस कैपिटल A1 के बराबर। स्मॉल A1 तो माइनस कैपिटल A1 की वैल्यू आप कड्ढी हुई सी, उन्होंने पुट करता तो उन्होंने सॉल्व कर लिया। सो उन्होंने 1000 टर्म के डिफरेंस कितना आया इज इक्वल टू 100। सो इस क्वेश्चन के ज़्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, पहला आप 100 टर्म का डिफरेंस कट के कंडीशन बना लैनी है, फिर आप 1000 का डिफरेंस कट लेना, वो वैल्यू पुट कर देने तो अपना क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ये सीगा अपनी एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 12। हुण आपां इस तो नैक्सट क्वेश्चन नू सॉल्व करते हैं। सो हुण आपां करन लगे एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखो किदां दा क्वेश्चन है, ईजी क्वेश्चन है, सिर्फ ये है कि इस क्वेश्चन दे विच आपां इक्वेशनस बना के फिर उन्होंने इक्वेशनस नू सॉल्व करना है। अदरवाइज अगर तुसी एक्सरसाइज 5.2 दे पिछले क्वेश्चन जिहड़े हैगे ने अगर वो सॉल्व किए हुए हैं तो ये क्वेश्चन बहुत ईजीली सॉल्व हो जाएगा। सो आपां सब तो पहले क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़ते हैं। क्वेश्चन की है द सम ऑफ द 4th एंड द 8th टर्म्स ऑफ AP इज 24, कि 4th टर्म ते 8th टर्म का सम दिता हुआ 24 एंड द सम ऑफ द 6th एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द AP। आपां AP दियां पहलियां 3 टर्म्स फाइंड करनियां ने।
सब तो पहले कंडीशन लिख लेने की गिवन है। कंडीशन गिवन है कि 4th टर्म प्लस 8th टर्म इज इक्वल्स टू 24। एक तो ये कंडीशन है। दूसरी कंडीशन की कहता है वो कि 6th टर्म प्लस 10th टर्म इज इक्वल्स टू 44। सो ये दो कंडीशन सी आप इन्होंने सॉल्व कर लेने। देखो 4th टर्म कढ़नी है, फॉर्मूला अपना होंदा है ए एन इज इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस 1 डी। ठीक है, सो A4 इज इक्वल्स टू ए प्लस 4 माइनस 1 तो 3D बन जाएगा। इसी तरह अगर मैं A8 कटना है, A8 इज इक्वल्स टू ए प्लस 8 माइनस 1 7D। सो A4 A8 की वैल्यू आप कढ़ ली इस फॉर्मूले के विच पुट करके, वो वैल्यूज़ आप पुट कर दें A प्लस 3D प्लस A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 24। ए ते डी की वैल्यू आपको नहीं पता कितनी है, वो आप फाइंड आउट करनी है। सो ए प्लस एक ए बन गया 2A प्लस 7 ते 3 बन गया 10D इज इक्वल्स टू 24। हुण इस पूरी इक्वेशन दे विच देखो 2 कॉमन आ रहा है क्योंकि 2A 2 × 5 10 होंदा है तो 2 × 12 24। सो अपने को 2 कॉमन आ रहा है, 2 कॉमन कर ली। A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। सो 2 की कटिंग होगी, अपने को आंसर आएगा A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन किद्दां बनी है, क्वेश्चन दे विच उन्हें दिता होया सी कि A4 प्लस A8 24 दे इक्वल है। A4 की वैल्यू आप कड्ढी AN दे फॉर्मूले दे विच, A4 कड्ढना तो N नूं 4 पुट करता, सॉल्व किया आ गया A प्लस 3D। A8 की वैल्यू किद्दां कड्ढी है, इसे फॉर्मूले दे विच N की वैल्यू पुट करके 8। सो A8 इज इक्वल्स टू A प्लस 8 माइनस 1 D। 8 माइनस 1 बन गया 7D। सो दी वैल्यू पुट करती, A ते A नूं ऐड कर लिया बन गया 2A। 7D प्लस 3D बन गया साढ़े कोल 10D इज इक्वल्स टू 24। 2 कॉमन कर लिया, 2 इधरों भी कॉमन कर लिया तो इधर A बचूगा, इधर बचूगा 5D क्योंकि 2A ते 2 5 10D बनता है। इधरों 2 कॉमन कढ़िया 12 आ गया, 2 ते 2 की कटिंग हो गई आपस दे विच, की बच गया साढ़े कोल A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12। ये बन गई साडी इक्वेशन नंबर 1। हुण जो आपां नूं दूसरी कंडीशन क्वेश्चन चो गिवन सी उहदे च आपां वैल्यूज़ पुट कर लिए। A6 की वैल्यू कितनी आएगी, A प्लस 6 माइनस 1 बन गया 5D। A प्लस 5D तो A10 की वैल्यू A प्लस 10 माइनस 1 आ जाएगा 9D। सो ये दोनों वैल्यूज़ में पुट कर दिए, A प्लस 5D प्लस A प्लस 9D इज इक्वल्स टू 44। ठीक है, सो ये A प्लस A बन गया 2A प्लस 9D प्लस 5D बन जाएगा 14D इज इक्वल्स टू 44। सो इधर भी सारी इक्वेशन चो आप 2 कॉमन करते हैं। 2 कॉमन इत्थे भी आप कढ़िया, इत्थे आप अलग तरीके नाल 2 कॉमन कढ़ के दिखानी हो, दोनों तरीके नाल आप कॉमन कढ़ सकते हैं। मैं इधरों 2 कॉमन कढ़ लेनी है, की बचेगा इत्थे बच जाएगा A क्योंकि 2 मैं बाहर कढ़ लिया प्लस 2 × 7 होंदा है 14। 2 तो आप बाहर कढ़ लिया तो अंदर की बचेगा 7। सो 7D इज इक्वल्स टू 44। A प्लस 7D जेड़ा 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है उधर डिवाइड चल जाएगा, ये बन गया A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। सो ये भी एक मैथड है कॉमन कढ़न का कि आप इधरों वैल्यू कॉमन कढ़ लिए तो उन्होंने उधर जाके डिवाइड कर दी। अगर यही स्टैप तुम इत्थे भी करोगे तो जो 24 नूं 2 नाल डिवाइड करोगे तो 12 आंसर आएगा। ठीक है, सो दोवें तरीके नाल तुसीं कॉमन कढ़ सकते हो। ये अपने को फर्स्ट इक्वेशन सी, ये आ गई साडे कोल सैकेंड इक्वेशन। हुण आपां A ते D दी वैल्यू फाइंड कर लैनी है, वो किद्दां कड्डांगे, इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं सॉल्व करके। इक्वेशनस नूं सॉल्व करन दे असीं मैथड्स कीते सीगे, सबस्टिट्यूशन मैथड, एलिमिनेशन मैथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मैथड। उन्हां विचों कोई भी मैथड अप्लाई करके आपां इन्हां नूं सॉल्व कर सकते हैं। सो 2 इक्वेशनस ने जिहड़ियां, पहली इक्वेशन है A प्लस 5D इज इक्वल्स टू 12 तो दूसरी इक्वेशन है A प्लस 7D इज इक्वल्स टू 22। इनू आप एलिमिनेशन मैथड नाल सॉल्व कर दें। सो साइन चेंज करेंगे, पहला प्लस का माइनस बन जाएगा, इत्थे भी प्लस का माइनस बन जाएगा, प्लस है सो माइनस बन जाएगा, प्लस ए माइनस ए ने एक दूसरे को कैंसिल करता। 5D माइनस 7D इज इक्वल टू 12 माइनस 22। सो 7 चो 5 माइनस किया 2D
नाल क्योंकि 7 के अगे माइनस का साइन है, माइनस का साइन आ गया। इस तरफ 12 माइनस 22, 22 चो माइनस करांगे 10 बन गया। 22 के अगे माइनस का साइन है, सो साइन आ गया माइनस का। माइनस ने माइनस में कैंसल करता, कि बच्चे अपने को 2d इज इक्वल्स टू 10। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, सो d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू 5 आ गई। d की वैल्यू चाहे आप इक्वेशन 2 च पुट कर दिए, चाहे आप इक्वेशन 1 च पुट कर दिए, अपने को a की वैल्यू आ जाएगी। सो पुट कर देना d की वैल्यू इन इक्वेशन नंबर 1। हियर वी पुट वैल्यू ऑफ d की वैल्यू पुट कर दिए, a प्लस 5, d की वैल्यू आ गई साढ़े को 5 इज इक्वल्स टू 12। a प्लस 5 5 25 इज इक्वल्स टू 12। a इज इक्वल्स टू प्लस का 25 है, इधर जाके माइनस का 25 बन जाएगा। माइनस कर लेने 5 माइनस 2 3 2 माइनस 1 1 नाल माइनस का साइन, क्योंकि 25 वड्डी वैल्यू है तो वो अगे माइनस का साइन है। सो a इज इक्वल्स टू -30। क्वेश्चन दे विच उन्हें क्या सी फाइंड दी फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ दी AP। आपां पहलियां 3 टर्म्स फाइंड करनियां ने। फर्स्ट टर्म तो अपने को आई गई है, a हुंदी अपनी फर्स्ट टर्म, सो a इज इक्वल्स टू -30। फर्स्ट टर्म a1 तां a दे इक्वल हुंदी है विच इज -13। a2 फाइंड करन लई की करांगे a प्लस d, सो -13 प्लस 5 माइनस प्लस माइनस a की वैल्यू कितनी आ जाएगी -8। a3 फाइंड करने की करांगे a2 दे विच d ऐड कर देने, पिछली टर्म दे विच d ऐड कर देने। सो -8 प्लस 5 की बन जाएगा साढ़े को -3। सो फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ AP अपने को की आई ने। पहली टर्म आई है -30, दूसरी टर्म आई है -8 तो तीसरी टर्म आई है -3। ठीक है, फर्स्ट टर्म आपां किद्दां कड्ढी है? फर्स्ट टर्म आपां नूं फॉर्मूले दे विचों मिल गई। सैकेंड टर्म दे लई a1 प्लस d, जिहड़ी भी अपनी फर्स्ट टर्म सी उहदे विच आपां d नूं ऐड करता तो अपनी सैकेंड टर्म आ गई -d। थर्ड टर्म किद्दां कड्ढी आपां? पिछली टर्म दे विच d नूं ऐड कर दिता, a2 दे विच d नूं ऐड किया, सो आंसर आ गया -3। सो इस तरह फर्स्ट 3 टर्म्स आपां फाइंड करनी सी -13 -8 ते -3। क्वेश्चन दे विच सब तो पहला जो आपां नूं 2 कंडीशनस दित्तियां ने उन्हां दी हेल्प नाल 2 इक्वेशनस बना लैणियां। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशनस बनाने लई फॉर्मूला किहड़ा अप्लाई होगा? an दा फॉर्मूला। an दे फॉर्मूले दे विच n दी वैल्यू पुट करनी है। n दी वैल्यू 4 पुट करोगे तो a 4 दी आ जाएगी इक्वेशन। n दी वैल्यू 8 पुट करोगे तो a 8 दी आ जाएगी इक्वेशन। n दी वैल्यू 6 पुट करो, फिर n दी वैल्यू 10 पुट करो। सारियां वैल्यूज पुट करके अपने को a वैल्यूज आ गई। इन्हां दी वैल्यूज पुट करके 2 इक्वेशनस बना गए 1 ते 2। इन्हां दोनों इक्वेशनस नूं एलिमिनेशन मैथड नाल सॉल्व किया। सॉल्व करन तो बाद d की वैल्यू आ गई 5। d की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 च पुट की। पुट करन तो बाद सॉल्व किया तो a की वैल्यू आ गई -30। a की वैल्यू आ गई मतलब अपने को फर्स्ट टर्म आ गई, उस तो बाद आप सैकेंड टर्म तो थर्ड टर्म कर ली तो साडा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। सो ये सीगा अपना क्वेश्चन नंबर 18। हुण आपां इस तो नैक्सट क्वेश्चन करते हैं। हाँ जी बच्चों, हुण आपां एक्सरसाइज 5.2 का प्रॉब्लम सम करन लगे हैं। स्टेटमेंट सम है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन आपां एक स्टेटमेंट की फॉर्म दे दिता होया। सब तो पहला आपां इस क्वेश्चन नूं रीड करके ये चीज़ फाइंड करनी है कि की आपां नूं गिवन है तो की चीज़ आपां फाइंड करनी है। सो आपां क्वेश्चन रीड करते हैं। क्वेश्चन है कि सुब्बा राव स्टार्टेड वर्किंग इन 1995 च उन्हें वर्क किया स्टार्ट एट एन एनुअल फी ऑफ ₹5000। मतलब जो शुरू किया उदों कितनी फी सी? ₹5000 एंड रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट ऑफ 200 ईच ईयर। तो हर साल उन्होंने 200 का इंक्रीमेंट मिलता सी। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच 7000। किहड़े साल च जाके उसकी सैलरी 7000 बनूगी? आपां वो साल फाइंड आउट करना। ठीक है, ए वैल्यू फर्स्ट टर्म मतलब पहले साल उन्होंने कितनी सैलरी मिली? फर्स्ट टर्म आपां दित्ती हुई है ₹5000। इंक्रीमेंट हर साल कितनी होनी है? 200 दी, मतलब आपां नूं कॉमन डिफरेंस दिता होया है ₹200। उस तो बाद एन आपां नूं दिता होया है ₹7000 ते एन की वैल्यू आपां फाइंड करनी। ठीक है, एन की वैल्यू आपां फाइंड करनी है मतलब किहड़े ईयर च ओहदी वैल्यू जिहड़ी है 7000 बनी
ਸੈਕੰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਬਣੀ, ਥਰਡ ਈਅਰ 'ਚ ਜਾਂ ਫੋਰਥ ਈਅਰ 'ਚ, ਫਿਫਥ ਈਅਰ 'ਚ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਇੰਟੀਜਰ ਵੈਲਿਊ ਆਊਗੀ। ਠੀਕ, ਸੋ ਆਪਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ 'ਚ ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਈਏ। ਫਾਰਮੂਲਾ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ an ਇਜ਼ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ a ਪਲੱਸ n ਮਾਈਨਸ 1 d। an ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 7000, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ 5000 ਪਲੱਸ n ਮਾਈਨਸ 1, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਪਾਂ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ, d ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈ 200। ਸੋ 7000 प्लस 5 है, इधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस करांगे आ जाएगा 2000 इज इक्वल्स टू n माइनस 1 200। 2000 200 है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, जीरोस नाल जीरोस कैंसिल हो गए, 20 ਨੂੰ 2 ਨਾਲ डिवाइड कर दिए, 2 1 2, 10 आंसर आ गया। सो 10 इज इक्वल्स टू n माइनस 1, जेड़ा इधर माइनस 1 है इधर आके प्लस 1 हो जाएगा, 10 प्लस 1 इज इक्वल्स टू n, 11 इज इक्वल्स टू n। सो n की वैल्यू 11 आ गई, इट मीन्स 11th ईयर his salary becomes, in 11th year his salary becomes 11वें साल च जाके ਉਹਦੀ सैलरी 7000 बनेगी in the 11th year। सो ਆਪਾਂ n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਫਰਸਟ ਸੈਲਰੀ, ਕਾਮਨ ਡਿਫਰੈਂਸ ਮਤਲਬ ਹਰ ਸਾਲ ਕਿੰਨਾ ਇੰਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ, ਤੇ nth ਵੈਲਿਊ ਕਿਹੜੇ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, ਕਿੰਨੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਣੀ ਸੀ, an is equals to 7000, ਇਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਸੀ, ਫਾਰਮੂਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਵੈਲਿਊਜ਼ ਪੁੱਟ ਕੀਤੀਆਂ, ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ, n ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ 11। ਸੋ 11th ਈਅਰ 'ਚ ਉਹਦੀ ਸੈਲਰੀ 7000 बनेगी। ये अपना स्टेटमेंट सम सी। क्वेश्चन बहुत ईजी सी, सिर्फ आप क्वेश्चन नू रीड करके पहला ये चीज़ आइडेंटिफाई करनी सी की गिवन है तो की चीज़ आप फाइंड करनी है। सो इस तरह के होर भी प्रॉब्लम सम्स दिते हुए हैं, एग्जाम्पल्स दिते हुए हैं, सारे प्रॉब्लम सम्स नू ते सारे क्वेश्चन नू तुसी रिटन प्रैक्टिस करनी है ताकि इन्होंने क्वेश्चन की अच्छी तरह प्रैक्टिस कर लो ताकि तुहाडे तो ईजीली सॉल्व होने स्टार्ट हो जाए। फॉर्मूले इस चैप्टर के आप 3 ही किए हैं, SN के 2 फॉर्मूले किए हैं तो एक आप AN का फॉर्मूला किया है। सिर्फ ज़रूरत यह है कि तुसी इन्हां क्वेश्चंस की रोज़ प्रैक्टिस जरूर करो। सो इस तो अगे असीं पढ़ांगे अगले लैक्चर दे विच। थैंक यू।